Okay, good morning, students. Last time we have done properties of determinants. I have told you maximum 10 properties of determinants, which makes the determinant easy to solve. I hope that you have learned all the properties. So today I will show you the use of property, some examples here. See, in this example, question is using the properties of a determinant and without expanding. Prove that this determinant equal to 0. So question is that you have to only use the property and don't expand this, because we know the determinant, expansion, simple value, how to expand. Clear? So here, using the properties of a determinant and without expanding, how we will do this? So students, you know, when the value of determinant is 0, I have told you 2 or 3 cases. In first cases, I have told that if any row or any one column of the determinant is 0, then the value of determinant is 0. You can do that, or you can also see if any 2 row or column of a determinant are identical, then the value of determinant is 0. And one more, that is, if any 2 row or 2 column of the determinant are proportional, then also the value of determinant is 0. So it means there are 3 possibilities to do this question, to solve this question, and see which possibility you can use. So number 1, here is the possibility that is given. That is what is given here. You can see here you have given x, y, z, a, b, c, x plus a, y plus b, z plus c. So you can see these are the 2 columns and here some of these 2 columns. So if this determinant can be written as sum of 2 elements, then this determinant can be expressed as sum of 2 determinant. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में नो चेंज, वो एज यूजुअल आएंगे बेटा दोनों डिटर्मिनेंट में, दिस वन as well as this one. Clear? But this you will change, that is right, first column in first x, y, z here, and in second determinant a, b, c, that is second element. So what you can observe here, you can observe that this column in this first determinant, these 2 columns are identical. It means its value is 0. Same here, here are 2 columns identical. It means this value of this determinant is also 0. So in this way, you can simplify or you can do the questions. So this one is the way to solve the question. Another approach you can also use, because if you simply use the property, what property? C3 को अगर आप expand करें बेटा, what? C3 minus C2. C3 को ऑपरेट करें अगर C3 minus C2, what happen? This A, B, C cancel, x plus A minus A, that become x, y plus B minus B, that become y, z plus C minus C, that become z. So only you will get this first determinant. This one only you will get. Clear or not? यहाँ कुछ नहीं बचेगा. So what is the value of this determinant? Again 0. Value of determinant, because 2 columns are identical. So you can do like this. You can also operate C3 minus C1 minus C2. What happened? Here becomes 0. Means third column becomes 0. Then value of determinant is again 0. So it means this one is the situation. तो ये बेटा आप लोगों को सारा क्वेश्चन में चेक करना है कि हमें क्या दिया है, हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जहां से इजी बने. तो ये आपके ऊपर है. वन ऑफ द अप्रोच यहाँ सॉल्व है. अनदर 2 अप्रोचेस मैंने आपको क्लियर कर दी. ठीक है,
तो फोकस करेंगे। हियर इन द सेकंड क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इस पे ऑब्जर्व करो क्या दिया हुआ है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस ए इक्वल टू 0। बेटा अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, व्हाट यू कैन डू, वन अप्रोच जो यहाँ पर की गई है, अप्लाइंग R1 प्लस 2, क्यों अप्लाई की, बी से बी कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया। तो इसके पास क्या बन गया यहाँ पर, a माइनस सी, बी माइनस सी, लाइक दिस, वो निकला, रो में लगाई हमने, यहाँ से ये होगा R1 प्लस R2, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी, हियर आल्सो सी से सी कैंसिल होगा, बी माइनस ए, हियर आल्सो सी माइनस ए और a माइनस बी आपस में होंगे, ए कैंसिल, सी माइनस बी, ये बन गया। अब इसका बेटा बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये है, हमने थर्ड रो एज यूजुअल थी, नो चेंज, लेकिन मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो सी माइनस ए का क्या बन गया, माइनस ए माइनस सी, माइनस बी माइनस ए एंड माइनस सी माइनस बी। अल्टीमेटली तीनों में माइनस कॉमन है, तो आपको बताया था कि जब किसी एक रो में डिटर्मिनेंट में नेगेटिव या कुछ भी कांस्टेंट कॉमन है तो यू कैन टेक दैट आउटसाइड, तो इसको बाहर ले जाएंगे, अंदर a माइनस सी, बी माइनस ए और c माइनस बी। एंड व्हाट हैपन, अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्व करने पर बेटा आपको क्या मिलेगा कि फिर से जो फर्स्ट रो है, ये देखो, ये फर्स्ट रो a माइनस सी, बी माइनस ए, और ये ही आपके पास थर्ड रो बन, ठीक है, मीन्स value of determinant become 0. So this one is the one of the approach. Another approach also you can use. See here, a minus b, b minus c and c minus a, अगर हम तीनों को ऐड कर दे, बोलने का मतलब सिंपल वे से, ये मेरे पास R1 को अगर मैं ऑपरेट कर दूं, क्या ऑपरेट कर दूं, R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस, अब माउस से लिख रहा हूं तो थोड़ा सा आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेना, R3, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज, इफ यू यूज दिस प्रॉपर्टी R1 प्लस R2 प्लस R3, व्हाट हैपन, B से B कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे कैंसिल हो गए जब आप ऐड करेंगे, C से C कैंसिल हो जाएगा और A से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब फर्स्ट रो में अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट रो चेंज हो रही है, मैं फिर कह रहा हूं, तो जब मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में यहाँ 0 आ जाएगा, सेम वे पे बेटा यहाँ भी 0 आ जाएगा, क्योंकि B से B, C से C, A से ये कैंसिल, और यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो if one of the row is 0, then value of determinant is 0, ठीक है। तो ये सारा केसेस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब कौन सी अप्रोच है, आपकी थिंकिंग कहाँ चलती है, किस साइड चलती है। कॉलम में भी ये सेम है, क्योंकि सिमेट्री है, चाहे रो की साइड पे जाओ, देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इस साइड भी वही हो रहा है। तो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कैसे करना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि क्वेश्चन आपका यूजिंग प्रॉपर्टी जनरली बोर्ड में अब 6 मार्क्स का पूछा जा रहा है, क्लियर, और नहीं है तो फिर 4 का भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैक्सिमम चांसेस अब 6 पे चलेंगे। ओके, तो ये तो आपके पास क्लियर हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो बेटा मेन बात वही है, थिंकिंग, अब सोचना है, यहाँ पर भी फिर वही बात आएगी, या तो किसी एक रो को 0 बनाओ, या फिर कोई 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल करिए, या प्रोपोर्शनलिटी में सोचिए, तो जो भी आप करेंगे। तो देखो इस बार अगर आप सोचने का है कि क्या 265 के साथ किसी तरह लिंक करता है या 7 लिंक करता है, ठीक है, क्योंकि कहीं भी ना तो मेरे को रोज और कॉलम में, रोज में तो कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, नहीं दिख रहा है सिंपल वे पे, है ना। यहाँ अब ऐसे देखे तो ऐसे भी कोई ये नहीं, लेकिन यस 7 और 65, 875, अगर इनको मैं थोड़ा सा और ऑब्जर्व करूं तो कुछ लिंक किया जा सकता है। ई 65 को 7 9 जा होता है, देखो 63, 8 9 जा होता है 72,
ठीक है। 63 में 2 ऐड हुआ तो 65 होता है। 8 9 जा हुआ 72 प्लस 3 75 और 9 9 जा हुआ 81 प्लस 5। तो इट मीन्स ये काम कर जाएगा। तो इसीलिए देखो यहाँ जो लिखा है ठीक है, फर्स्ट टू कॉलम एज यूजुअल और इसको सम ऑफ टू एलिमेंट लिख लिया 63 प्लस 2 72 प्लस 3 81 प्लस 5। जस्ट आप लोगों को क्लियर करने के लिए अब आप ये सीधा डायरेक्ट ऑपरेशन भी लगा सकते हैं या इसने ऑपरेट कर दिया इसको कि दिस कैन बी रिटन सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट में 63 72 81 फर्स्ट टू कॉलम में नो चेंज और सेकंड में 2 3 5 एज। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना। अब ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 3 5 हो गया, 2 3 5 इसमें 0 हो गया। और ये मैंने आपको अभी बताया था कि 9 7 जा होता है, 9 8 जा होता है, 9 9 जा। तो ये दो कॉलम आपके आप प्रोपोर्शनल होंगे। कौन सा? C2 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल। और आपको अगर प्रोपोर्शनलिटी नहीं लगानी हो तो एक स्टेप में क्या करो, 9 कॉमन ले लो और आप कहेंगे 9 कॉमन लेते ही क्या हो जाएंगे। देखो 9 बाहर ले लिया तो आइडेंटिकल बन गए। तो आप फिर कह दो कि यस टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल तो वैल्यू इज 0। और डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते थे कि सिंस टू कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल तो देयरफॉर देयर वैल्यू इज 0। मतलब वो आपके पास पर्टिकुलर केसेस बनाए गए हैं दो प्रॉपर्टियों का, एक कॉमन लेने वाले का और एक आइडेंटिकल का। तो इसलिए फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लीज आपकी बुक में अब समझ गए होंगे कैसे करने क्वेश्चन। इस पे भी देखिए, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। अब बेटा इसको प्रूव करना है। अब यहीं पर थिंक एंड रीथिंक प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए कि कैसे करना है। तो थोड़ा सा इस पे वर्क करना शुरू कर। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो ओपन करके। अभी मैंने बताया यहाँ तो 1 1 है, यहाँ BCCA AB है। अगर मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लूँ तो अंदर क्या बनेगा, AB AC और इधर है बेटे BC। इधर भी देखो यही है, BC AB बनेगा। तो अभी आपको अगले स्टेप में ये दिखा दिया जाएगा, तो उसी पे हम वर्क कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके आपके पास फिर इनको ऐड कर सकते हैं बेटे, क्योंकि यहाँ BC है, यहाँ AB और AC है, यहाँ C है, यहाँ BC और AB है, यहाँ AB है और AC। तो इसका मतलब इन दोनों कॉलम को बाद में ऐड कर लेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 कैसे होगी, मतलब सेम टर्म आएगी और आराम से उसको कॉमन निकाल पाएंगे। ये देखो मैंने जो अभी बताया, ये मल्टीप्लिकेशन की और फिर इसमें सेकंड कॉलम ऐड कर लो। देखो लिखा है C3 में C3 प्लस C क्या बन गया, AB प्लस BC प्लस CA। अब AB प्लस BC प्लस CA को आप कॉमन ले लो, या सीधा लिखना है तो मैंने बताया था, क्योंकि इसमें ये कॉमन आएगा तो यहाँ 1 है, ये भी 1 1 1 बन जाएगा। मतलब फर्स्ट कॉलम और थर्ड आर प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। और यू कैन टेक, इसको कॉमन ले लीजिए और कॉमन लेने के बाद यहाँ आपके पास क्या बच जाएगा, जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये 1 बच जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ भी 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1। और फिर बाद में आपके पास क्या आ जाएगा कि सिंस टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो इन चीजों को बेटा अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, सेम वे पे दिस क्वेश्चन इज आल्सो हियर। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको हिंट अप करूंगा, क्योंकि कुछ दिमाग अब आप लोगों ने भी अपने आप इन क्वेश्चन को करना है। तो हल्का सा जस्ट हिंट अप कर देते हैं, बाकी आप लोग अब खुद करते रहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए BC प्लस Q प्लस R, Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, ठीक है, X प्लस Y। अब 2 टाइम A P X B Q Y C R Z, और एक्सपेंड नहीं करना है, सिंपल सी बात है। एक्सपेंड से भी नहीं तो प्रूव हो जाते हैं, बट वो काम नहीं करना है। तो फिर बेटा यहाँ जो सिमेट्री अब अगर आप लोगों को देखिए कि कैसे बनाया जाए, तो यहाँ डिफरेंट अप्रोचेज यूज की हुई है। वन ऑफ दी अप्रोच ये यूज किया है, अनदर अप्रोच में नहीं होगा तो आपको नेक्स्ट टाइम भी बता दूंगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो शो की है मैं अभी उसी को क्लियर कर रहा हूँ। ये देखो लास्ट कॉलम को इसने क्या किया कि लास्ट रो सॉरी, दिस कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू एलिमेंट, so therefore these can be expressed as sum of two determinant। तो देखो फर्स्ट में APX ले लिया, सेकंड में BQY, दो रो में कोई चेंज नहीं की। अब सिर्फ डेल्टा 1 को देख लो, डेल्टा 1 को देख लिया। अब सेम प्रोसेस से बेटे अगर आप सिंपल
क्या कर दो, जैसे इसने प्रॉपर्टी यहाँ C प्लस ए है, यहाँ R प्लस पी है, यहाँ Z प्लस एक्स है और नीचे A है, तो इट मीन यू कैन ऑपरेट यूज दिस ऑपरेशन R2 माइनस R3, फिर यहाँ C बच जाएगा। ठीक है, तो ये C बच गया, देखो R2 माइनस R3, यहाँ R बच गया और यहाँ Z बच गया। ठीक है, अब सेम वे पे ऊपर चले जाओ, ऊपर वाले में भी यही काम, R1 माइनस R2 करो, देखो B प्लस C से C माइनस होगा तो B बच जाएगा, Q प्लस R से R माइनस होगा तो Q बच जाएगा। ये देखिए BQY CRZ APX, ये हमने फर्स्ट डिटर्मिनेंट को डेल्टा 1 को कर लिया सॉल्व। और सेम वे पे अब आप, क्योंकि मेरे को जो चाहिए था उस पर भी फोकस करवा देता हूँ, याद दिला दूं, मेरे को ऊपर APX चाहिए, नीचे BQY चाहिए, नीचे CRZ, तो मेरे पास टोटली डिफरेंट आ गया है। CRZ जो है मेरे को बिल्कुल लास्ट में चाहिए, तो इसका मतलब मैं इस पे फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, दो रो को इंटरचेंज करूंगा। जैसे इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो A ऊपर आ जाएगा, C नीचे, माइनस बार आएगा, फिर C और B को इंटरचेंज करूंगा तो एक और माइनस बार आएगा। ये देखिए, इसलिए लिखा -1 का स्क्वायर, R1 R3 को इंटरचेंज किया, फिर R2 R3 को इंटरचेंज किया, तो ये आपके पास फिर APX BQY और CRZ क्लियर हो गया। इसको नंबर 2, अब डेल्टा 2 बचा था उसके ऊपर वर्क कर लो। अब देखिए यहाँ भी वही चाहिए, अब इसका मतलब मेरे को फिर से APX और BQY और CRZ आना चाहिए, मोटिव यही रह गया। तो इसको फिर ऑपरेट किया, R1 यहाँ से देखो B से B खत्म हो जाएगा, Q से Q खत्म हो जाएगा, Y से Y खत्म हो जाएगा, R1 माइनस R3, CRZ बच गया। सेकेंड रो में और थर्ड में कोई चेंज नहीं आएगी, जिसको ऑपरेट करेंगे सिर्फ उसी में चेंज आएगी। ठीक हो गया। सो आगे R2 और R1 को चेंज कर दो, R2 माइनस R1, C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से A बच जाएगा, APX। और फिर उसमें बेटा फिर वैसे ही इंटरचेंज कर लो जो आपको चाहे, R1 और R2 को करो, फिर R2 और R3 को करो। दो ऑपरेशन, -1 एक बार आएगा कॉमन, दो बार चेंज हुई तो -1 स्क्वायर हो गया। तो लाइक दिस आपके पास इस तरह से ये प्रोसेस रहेगा, यू कैन चेंज, और आपके पास ये डिटर्मिनेंट। बेटा कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। उसके बाद गिवन रिजल्ट आपके पास ये प्रूव हो गया, ये देखो दोनों में प्लस प्लस हो गया, डेल्टा 1 की वैल्यू भी सेम आ गई, डेल्टा 2 भी, तो ये हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपके पास, ये 6 क्वेश्चन, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सो दैट द वैल्यू इज 0, ठीक है। तो इसको करने के लिए फिर आप क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को अब सिचुएशन बता दी, सिचुएशन यही है, देखो क्वेश्चन लिखा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, अब यहाँ ये वर्डिंग नहीं लिखी है कि विदाउट एक्सपेंड, दोनों चीजों में। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी यूज करो और फिर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी बन जाए तो बहुत अच्छी बात। तो यहाँ आपके पास ये दिया हुआ था 0A माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, अच्छे से देख लीजिए क्या कर सकते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट रो को C से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ नीचे भी C पड़ा हुआ है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब इसमें सिचुएशन, जैसे ही C से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया था कि अगर किसी रो को मल्टीप्लाई करते तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो C से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए उसको बचाने के लिए हम 1/C से बाहर डिवाइड कर देते हैं ताकि कोई चेंज ना। तो ये C से मल्टीप्लाई कर लिया, व्हाट यू विल गेट, आप अपने आप देखिए, इसमें AC 0 बन गया, AC बन गया, माइनस BC बन गया। अगला एक और ऑपरेशन अब यूज किया, R1 माइनस BR2, देखो अब ये चीजें अंडरस्टैंड करनी है, ये कोई रटने वाला काम नहीं है, आपकी ऑपरेशन कुछ और भी हो सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन यस आपकी कोशिश यही होनी चाहिए, या तो कोई 2 रो आइडेंटिकल बने या 2 कॉलम आइडेंटिकल बने, तभी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होगी, या कोई एक रो 0 बन जाए। तो बोलने का मतलब ये सारी सिचुएशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ से वर्किंग क्या हुई, इसको भी आपके पास R1 माइनस BR2 किया, मतलब इससे क्या होगा, यहाँ ए बी आ गया और यहाँ AC माइनस 0 होगा तो AC रहेगा, और यहाँ माइनस BC और प्लस BC करने से 0 आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसलिए ये आपके पास माइनस BC ऑलरेडी है, प्लस BC से 0 हो गया, तो हुआ गया, इधर की 0 खत्म हुई तो इधर 0 आ गई, तो AB AC बन गया।
अब बेटे अल्टीमेटली फर्स्ट रो में आपको दिख रहा है कॉमन, व्हाट इज द कॉमन? ए कॉमन, तो ए कॉमन ले लीजिए, ये बन गया ए सी आउटसाइड, ए बाई सी बाहर, और यहाँ बच गया बी और यहाँ सी। तो इसलिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो बी सी और नीचे भी बी सी जी, टू रो आइडेंटिकल हो गए। तो इन क्वेश्चन को ऐसा नहीं करना कि जस्ट नोट करना है, प्लीज थिंक, रीथिंक एंड देन डू द क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही आगे है, मैं जस्ट आपको हल्का सा ये है, इसमें भी वही लिखा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट सो दैट दिस। तो फिर कह रहा हूं अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जब ये सिंपल ऐसे लिखता है यूजिंग प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब आप एक और दो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है कि डिटरमिनेंट उन प्रॉपर्टी की हेल्प से थोड़ा सिंपल बने। और बेटे सिंपल बनाने के लिए जितनी डिटरमिनेंट में जीरो आएगी, डिटरमिनेंट उतना ही इजी होगा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये कुछ रूल याद रखने की, अगर और कुछ प्रॉपर्टी नजर ना आए तो आप यहाँ पर कुछ एलिमेंट जीरो बनाने की कोशिश करें ताकि इजी पड़ जाए। तो देखिए लिटिल बिट इस क्वेश्चन पे नजर रखिए, ये आपके पास क्वेश्चन था। हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट में ए कॉमन है, सेकंड में बेटा बी कॉमन है, थर्ड में सी कॉमन है। अब मेरा ए बी सी आ गया, क्लियर हो गया, फर्स्ट रो से ए, सेकंड से बी, थर्ड से सी। और अगर अभी अगला ही स्टेप देखे तो फर्स्ट रो में कॉलम में ए कॉमन दिख रहा है, सेकंड में बी और थर्ड में सी, तो उसको भी बाहर लेंगे, तो इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर बन जाएगा। अब अंदर ये नंबर बच गए। अब देखो मैंने कहा आपको, हालांकि इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन और इजी बनाने के लिए मैंने कहा आपकी टेंडेंसी हमेशा रहनी चाहिए कि एक और दो चीज, और जब भी आप इनके बारे में सोचेंगे तो बेटर है, देखो फर्स्ट रो को फिर चेंज मत किया करो या फर्स्ट कॉलम को, बेटर है इसको अप्लाई करो। क्या? R2 प्लस R1, यहाँ जीरो आ जाएगा, और सेम वे पे R3 प्लस R1 करेंगे तब भी जीरो आ जाएगा, और ये दो एलिमेंट जीरो बन जाए, बहुत इजी। या ये कॉलम में भी आप लगा सकते थे C2 प्लस C1 और C3 को C3 प्लस C1। तो लाइक दिस इसको आप सॉल्व कीजिए, और आफ्टर सिंप्लीफाई देखो जब दो जीरो आ गई तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना और इजी हो जाता है, क्योंकि क्या बनेगा -1 0 माइनस, मतलब ये बचेगा, बाकी तो आगे जीरो जीरो आएगी फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड। सो यू विल गेट दिस। अब आगे वाले क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्मिटी है, मैं पूरे क्वेश्चन पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं दूंगा, जस्ट अब बेटे आपको हल्का सा हिंट अप करूंगा कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। अब ये दो क्वेश्चन है आगे आपके पास, देखो यहाँ 1 1 1, बेटा सबसे अच्छा पॉइंट है जब भी, अब देखो अब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिल्कुल जी आपने इसको एक्सपेंड ही नहीं करना। अब लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, तो आप एक दो प्रॉपर्टी जैसे ऊपर के क्वेश्चन में यूज की और उसके बाद एक्सपेंड कर दी। बट मैंने कहा जितना इजी हो सके, जैसे जब भी किसी एक रो में, जैसे इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में 1 1 एक बार आपको दिख जाए, इस पॉइंट को बेटा ध्यान देना जो मैं अभी स्ट्रेस दे रहा हूं, कि जब भी किसी एक रो में या कॉलम में, जैसे यहाँ मेरे को 1 1 दिख रहा है या यहाँ एक 1 1 दिख रहा है, तो आपकी बेटा हमेशा टेंडेंसी होनी चाहिए कि इसको जीरो बनाए और इसको जीरो, और किसकी हेल्प से? फर्स्ट रो की हेल्प से, बिल्कुल ये है। और सेम तो इसमें ऑपरेशन क्या हो सकता है? ऑपरेशन हो सकता है R2 को ऑपरेट करेंगे, R2 माइनस R2, देखो लिखने का ऐसे ही लिखना है, R2 एरो यूज करना है, R2 माइनस R1, क्लियर हो गया। और सेम वे पे R3 को ऑपरेट करना है, तो दो ऑपरेशन आप साथ लगा सकते हैं, R3 को ऑपरेट करेंगे R3 माइनस R1 अगेन। तो ये आपके बड़ा यूनिवर्सल ऑपरेशन होता है whenever you will get one row or column as a 1 1 1। तो ये टेंडेंसी आपकी बहुत से क्वेश्चन में होगी कि पहले ये 1 1 बनेंगे और फिर ये यूनिवर्सल ऑपरेशन कह रहा हूं मैं, ये रो के लिए, इसी तरह कॉलम में आएगा, रो की जगह बस सी लिखा जाएगा, C2 को एक्सपेंड करेंगे C2 माइनस C1, और यहाँ C3 को एक्सपेंड करेंगे C3 माइनस C1। तो बेटा इसको ध्यान रखेंगे और हम आगे चलेंगे। अब मैं हल्का सा आप लोगों को इस पे बता देता हूँ, ये देखिए। अच्छा दूसरा वे देखो अपने आप ही होता है, अब आप सोचेंगे a माइनस बी भी खुद बनेगा, मतलब a माइनस बी के बजाय मेरी टेंडेंसी रहेगी b माइनस ए बना,
तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। हालांकि देखो यहाँ ऑपरेशन जो यूज किया, इन्होंने R1 को ऑपरेट किया R1 माइनस R3 और R2 को ऑपरेट किया R2 माइनस R3। इन्होंने ऊपर वाले दोनों 0 बनाए और नीचे का 1 छोड़ दिया। ठीक है, तो इन्होंने दोनों को ही, मैंने जो किया था, मैंने अभी आपको ऑपरेशन बताया, वो 1 के साथ यूनिवर्सल है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर उस वे से करना उससे कर लो, ऐसे करना तो ऐसे कर लो, ये अब आपके ऊपर छोड़। इसका बेनिफिट देखो, जहां 0 बनेगी यहाँ a माइनस सी ए स्क्र माइनस सी स्क्र, अब क्या होगा, a माइनस सी कॉमन आ जाएगा। देखो फैक्टर बन रहे हैं यहाँ भी फर्स्ट रो से, यहाँ b माइनस सी कॉमन आ जाएगा। जो मैं ऊपर अप्रोच बताई थी वहां क्या आएगा, जब आप b माइनस ए करेंगे तो b माइनस ए कॉमन आएगा, और जब c माइनस बी करेंगे तो c माइनस बी कॉमन आएगा सेकेंड रो और थर्ड से। तो ये अब आपके लिए, और जब भी मैंने कहा 2 का फैक्टर कॉमन आ गए और 2 0 बन गए, फिर सीधा एक्सपेंड कर, क्लियर हो गया। वो अब आप करें तो ये आप देख लेंगे से, इसको अंडरस्टैंड। वैसे ही इसमें देखो C1 को किया इसने C1 माइनस C3, C2 को किया C2 माइनस C3। मैंने उल्टा बताया कि C2 को करो C2 माइनस C1 और C3 को करो C3 माइनस C1। बोलने का मतलब आपको ये यूनिफॉर्म अप्रोच सी बता दी कि बहुत जरूरी है। बाकी देखो यहाँ भी a माइनस सी बी माइनस सी, ए माइनस सी मतलब फर्स्ट कॉलम में कॉमन दिख रहा है, b माइनस सी सेकेंड में। और देखो बेटे अलजेब्रा के फार्मूले, ए क्यू माइनस सी क्यू की फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, बी क्यू माइनस सी क्यू की फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने इनको स्टेप्स को थोड़ा देखना होगा तो वीडियो को बीच में पॉज करके आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि क्या है, और बेटे कॉपी रखेंगे साथ है। ऐसा नहीं है कि जस्ट देखा ये कान से सुना और कर लिया, नो। वीडियो को जब भी आप इसको देखेंगे आप अपनी नोटबुक के साथ बैठेंगे और उतना करो, जितनी देर आप बैठेंगे उतना देख लो, फिर दोबारा देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको बता दिया। यहाँ देखो अब सेम प्रोसेस है। अब आपको किसके बारे में सोचना है, फैक्टर बनाने हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो यहाँ से x माइनस वाई आप सीधा ऑपरेट करना है, या मैंने जो यूनिवर्सल है देखो अब ये यूनिवर्सल में आया। मैंने कहा R1 को हम ज्यादा टच नहीं करते या C1 को नहीं है, तो यहाँ इसने भी वही लगाया, R2 को ऑपरेट किया R2 माइनस R1, R3 को ऑपरेट किया R3 माइनस, इससे y माइनस एक्स और z माइनस एक्स बनेगा, और बाद में वो कॉमन बनते हुए दिखेंगे। देखो ठीक है, इसमें भी y माइनस एक्स कॉमन है, इसके फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर, हाँ ठीक है, माइनस अंदर छोड़ दो, x माइनस वाई ले लो। यहाँ z माइनस एक्स चाहिए तो z माइनस एक्स तीनों में बन गया है, उसको बाहर ले लीजिए, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो ये हल्के से हिंट अप कर दिए आप लोगों के लिए, स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ कि आप आराम से इनको देख लेंगे। बस आगे एक्सपेंड किया हुआ है, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं अगर कहीं आपसे नहीं हुआ। लेकिन वैसे कोशिश बेटे अब आपकी होनी चाहिए कि आप खुद करें। ये देखिए इस क्वेश्चन का मैं एक और ब्यूटी बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है, जो इजिली आपको दिख रहा है वही काम करना। हियर इज x प्लस 4 2x 2x, ठीक है। अब देखो सिमेट्री है, जैसा फर्स्ट रो में है वैसा ही सेकंड रो में है, वैसा ही थर्ड रो में, बस एलिमेंट आगे पीछे दिख रहे। तो ऐसी जगह में बेटे चाहे कॉलम में देखेंगे तब भी ऐसा ही हो रहा है। देखो तो ऐसी जगह में आप तीनों रो को ऐड कर सकते हैं या तीनों कॉलम को ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, देखो 2x प्लस एक्स, 3x प्लस 2x, 5x प्लस 4, और एक फैक्टर बनता हुआ दिखेगा। बहुत ही इजी। सेम वे पे देखो इस पे भी देख लो, यहाँ y प्लस के वाई, तो तीनों को ऐड कर दें हम तो ये बन जाएगा 3y प्लस के। फर्स्ट रो को ऑपरेट कर दो, मतलब फर्स्ट कॉलम को कर दो, रो को भी कर सकते हैं, सिमेट्री है। ऐसे ही इधर, ऐसे ही, और 3y प्लस के आराम से कॉमन। अच्छा जैसे ही ये कॉमन आएंगे एक रो या एक कॉलम 1 1 बन जाएगी। और बेटा फिर वही यूनिवर्सल ऑपरेशन, या R1 को जो मैंने बताया उसको रहने दो, R2 को या C2 को चेंज करो, जो भी है R2 माइनस R1, R3 को चेंज करो R3 माइनस R1, लाइक दिस। तो प्लीज इन चीजों को अच्छे से समझिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हल्का सा मैं इसको भी ये करवा दूं। ये देखो R1 को किया R2 प्लस R3, मैंने इसीलिए कहा कि अब हिंट अप से काम चल पड़ेगा। बन गया 5x प्लस 4, कॉमन आया 1 1 1। अब मैंने बताया आपको, जो मैंने बताया इसको 0 बनाओ,
इसको 0, इसको 0 बनाना है कैसे, C2 माइनस C1, इसको 0 बनाना है C3 माइनस C1। यहाँ इसने जो मर्जी किया हो, मेरे को नहीं ये है, मतलब हमें जो स्ट्रेस करना है, इसने देखो अब वही लगाया है ऑपरेशन जो मैंने आपको स्ट्रेस किया था, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये सिचुएशन सीधी होती है, यहाँ 2 0 आ जाएगी, जैसे ही लगाएंगे ये 0 आ गई। बाकियों के एलिमेंट के बारे में मैं ज्यादा सोच नहीं रहा, क्योंकि 2 0 आ गई, अब इससे काम हो गया, अब एक्सपेंड कर दो। ठीक है, अब एक्सपेंड करेंगे सीधा, इसने कॉमन लेकर के लिख दिया, रख दो यहाँ से, इसमें x प्लस 4 माइनस एक्स कॉमन निकाल दिया इसने बाहर, सेकंड कॉलम से भी थर्ड, तो यहाँ 1 1 बच गया। एक्सपेंड करेंगे या सीधा भी है, देखो डिटर्मिनेंट के एक साइड अगर 0 आ जाए तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 1 ही है, ये 1 ही आए। ये सेम क्वेश्चन बेटा अगला है, कोई चेंज नहीं, एक रो 0 हुई, सो यू विल डू। आगे इसमें भी यही सिचुएशन बनने वाली, देखो इसमें देखो a माइनस बी माइनस सी 2a, लेकिन नीचे को देखो, अब उधर दोनों साइड को डिफरेंट है, इधर को 2a है तो नीचे को 2b2c है, ऊपर ए बी सी है, नीचे भी बी सी है, तो मैं इनकी हेल्प लूंगा, इनको ऐड करूंगा C1 C2 C3। इससे बेनिफिट क्या होगा, माइनस बी में 2b ऐड होगा तो प्लस बी बनेगा, माइनस सी में प्लस सी ऐड होगा तो सी बनेगा। तो बेटे जब भी ऐसे प्रूव करने के तो राइट साइड के फैक्टर को देख लो कि a प्लस बी प्लस सी यार बनना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये फैक्टराइजेशन आपसे नहीं होंगी। ठीक है, तो इसलिए आप यहीं से बना लिया। इस अगले क्वेश्चन में भी यही होने वाला है, देखो x प्लस वाई प्लस 2z, ठीक है, नीचे भी z है, यहाँ भी z है, लेकिन इस साइड को देखें तो x है और y है, तो इधर 2z है, इसको ऐड करेंगे तो 2x बन जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो y, तो यहाँ ऑपरेशन होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, एक रो और एक कॉलम आपके पास x प्लस 2y प्लस 2z बाद में कॉमन आ जाएगा, सो यू कैन डू इजिली। अब बेटा मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ और वैसे ही समझा रहा हूँ, अगर मैं स्कूल में होता तो बोर्ड में भी इतना ही बता करके आपको खुद करने के लिए क्वेश्चन को छोड़ देता, क्योंकि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आपका क्वेश्चन होगा नहीं। ये देखो पहले वाली ऑपरेशन जो पिछले वाले क्वेश्चन था, इसमें ऐड कर दी तीनों रो, R1 प्लस R2 a प्लस बी प्लस सी बना, 1 बन गया। 1 बनने के बाद मैंने बता दिया यहाँ 0 यहाँ 0, और उसके बाद एक्सपेंड, बड़ा इजी। सेम वे पे सेकंड में भी वही काम। सो लाइक दिस प्लीज, आई थिंक नाउ यू कैन गो थ्रू दिस लेक्चर। यहाँ भी बेटे अब ऐसे ही है, अब आप लोगों ने खुद कर लेने हैं क्वेश्चन, मैं इस फोल्डर को भी भेज दूंगा भले ही साथ में, जो ये है सॉल्यूशन है, बट फिर भी आप पहले वीडियो को चेक करो, मैंने बताया क्वेश्चन को समझना है किस तरह से किया है। देखो कुछ नहीं है, वही ऑपरेशन लग रहे हैं, यूनिवर्सल है, मतलब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट में या तो जो फैक्टर है राइट साइड में वो बन जाए, या फिर डिटर्मिनेंट में ज्यादा से ज्यादा 0 आ जाए, ताकि वो सिंपल हो। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिस वन। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से करना। देखो कुछ नहीं किया है, 1 प्लस ए स्क्र या माइनस बी स्क्र है, लेकिन मेरे को प्लस बी स्क्र चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नहीं, इसको करेंगे बी स्क्र से, बी से, तो ये 2b² होगा और ऐड कर देंगे, तो फिर अपने आप 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र, यहाँ 2ab होगा, तो ये देखो ये 2b 0 हो जाएगा, ये काम किए हुए। ऐसे ही आपने ऑपरेशन लगाने, तो प्लीज ये अब आप खुद करें। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, चाहिए क्या, 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, तो इसमें बेटर है आप पहले ही ए को कॉमन निकाल। फर्स्ट रो में देखो यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ लिख रहा है, यहाँ ले लो, कोई बात नहीं, वो फ्रैक्शन में आ जाए 1 बाई ए। दूसरे से बी ले लो, तीसरे से सी ले लो, अब ये टर्म जब बन जाएगी, अब आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब आपके पास फिर मैंने वही बताया कि इजी बनाने के लिए अब 0 बनाने के ऊपर वर्क करिए, कैसे होगा, देखो इन दोनों को माइनस करेंगे, R2 माइनस R1, ये 0 बन जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे बी से बी को, तो यहाँ 0 बन जाएगा, और बाद में आप सिंपल एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ सिंप्लीफाई करके बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए। अब आई होप
that you will do the question, you will understand what I am telling. बेटा अच्छे से क्वेश्चन को करिए, ठीक है? जितना अच्छे से आप अपने क्वेश्चन करेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ, उतना ही बेटर रहेगा। जस्ट अगर फॉर द सेक ऑफ नोट अगर इसको आप नोट कर लेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ विद द अंडरस्टैंडिंग, और अगली बार मैं आगे बढ़ूंगा अगर कोई डाउट नहीं होगा। अगर यस आपके डाउट होंगे तो मैं जरूर फिर से इसमें फोकस करूंगा, बट आपकी कोशिश होनी चाहिए। फिर मैं सिंपल कहूंगा कि संडे शाम तक मेरे को क्लियरली मेरे पास आ जाए कि ये प्रॉब्लम है, और संडे को भी मैं कहूंगा 2 बजे से पहले पहले बेटर है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उनको यहाँ सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जहां भी आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। अच्छे से करिए। ओके।